Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is the lecture on mathematics for class 6th on chapter number 9. This is related to linear equations. I have already told you in the previous lecture what is a linear equation, what are algebraic expressions, what is the degree of the polynomial, and what are monomial, binomial, trinomial, etc. Now I have also shown you how to find out the solution of the equation, the trial and error method and systematic method. I have shown you both of them. Now we will move to first exercise of this chapter, 9.1, exercise 9.1 on page number 79 of your textbook. So question number 1 is, which of the following are linear equations of one variable? You are given some equations here. You have to see which of these are linear equations in one variable. Question number 1, part first. X plus 1 plus 7 is equal to 20. X plus y plus 7 is equal to 20. This is one of the equations. B part is 7x plus 6 is equal to 12. 7x plus 6 is equal to 20. 7x plus 6 is equal to 12. Part C, 2 into 5 minus 4 is equal to 6. 2 into 5 minus 4 is equal to 6. Now part D is x by 3 plus 2 by 3. X by 3 plus 2 by 3 is equal to 5. We have to say which of these equations are linear equations. Recall that linear equation, definition of linear equation. Linear equation in one variable. We have to see which is the linear equation in one variable. Variable means alphabet. If there is only one alphabet involving in the equation, then the equation is in one variable. We say the equation is of one variable. If there are two alphabets, then it is the equation with two variables. And what is linear? Linear means if the highest power of the variable in the equation is 1, then that is called the linear equation. See the first equation, x plus y plus 7 is equal to 20. These are two variables, x and y. So this is not the linear equation in one variable. This is linear equation because the highest power of the variable is 1 here. It is linear but not in one variable. It is linear equation in two variables. We have to see which of these equations are linear equation of one variable. So this is linear equation because highest power is 1, but it involves two variables. It is not one variable. See part B, 7x plus 6. It is linear equation in one variable because power of x is 1 here, highest power is 1, and only one variable is involving in this. So part B of this question number 1, it is linear equation. And part C, 2 into 5 minus 4 is equal to 6. There is no variable in it. It has no alphabet. So it is not one variable. It is numerical equation. It is not an algebraic equation with any variable. We have to say which of these are linear equations in one variable. So it is having no variable. This is linear but two variables. This is linear with one variable. And part D, this is also linear equation in one variable because only one variable exists here and its power is 1. But B and D are linear equations. ये B और D linear equations. तो यहाँ पर अगर ये x by 3 के बजाय 3 by x होता plus 2 by 3 is equal to 5, तो क्या ये linear equation वन वेरिएबल है? नहीं, याद रखना है. ये जो वेरिएबल होता है ये कभी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए. वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए. जब ये डिनोमिनेटर में आ गया तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं मानी जाती है क्योंकि वेरिएबल जब डिनोमिनेटर में आता है तो इसका पावर फिर -1 बनता है. इस 3 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो नीचे इसका पावर +1 है. डिनोमिनेटर से जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर इसका -1 जो है +1 जो है ये -1 बनेगा. तो जो डिग्री होती है, जो पावर होता है वेरिएबल का, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए.
its power should neither be a rational number nor any integer with negative power. Its power should always be a whole number. Its power can be 0, 1 to any whole number, not any negative integer or any rational number. लिहाजा डिनोमिनेटर में कभी वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ये चीज भी याद रखनी है. Now question number 2, write algebraic expressions for the following statements. We are given some statements here. Part A, 6 is subtracted from the product of m and 3. 6 is subtracted from the product of m and 3. यानी m and 3 का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का मतलब है m और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो निकलेगा वो आंसर, वो प्रोडक्ट कहलाता है m और 3 का. जैसे 2 और 3 का प्रोडक्ट है 2 3 is equal to 6. So product of 2 and 3 is equal to 6. When we multiply any two numbers or a number and a variable, the answer we get is called the product. So हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, 6 is subtracted from, 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, प्रोडक्ट ऑफ m and 3. यानी m और 3 को मल्टीप्लाई करो, निकालो इसका प्रोडक्ट. m को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे we will get 3m. उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करना है. 6 is subtracted from the product of 3 and m. So this becomes product of 3 and m is equal to 3m. उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो 6, gives 12 means it is equal to 12. Gives 12. यानी if we subtract 6 from the product of 3 and m, we will get the value as 12. यानी it will be equal to 12. So this is the algebraic expression. This is the equation for this statement of question number 2 part A. Now part B is 5 is equal to the sum of 8 and y. 5 is equal to the sum of 8 and y. 5 is equal to the sum of 8 and y. यानी 8 and y का सम जो है 8 प्लस y, सम कैसे निकालते हैं, ऐड करते हैं. 8 और y को अगर ऐड करेंगे तो हो गया इनका सम. ये इनका सम किसके बराबर है, 5 is equal to the sum of 8 and y. 8 और y का जो सम है वो 5 के बराबर है. So we will get the equation 8 plus y is equal to 5. इसी तरह है पार्ट C, half of x plus 3. Half of x plus 3. Half of x is written as 1 by 2x. Half of x plus 3. Half of x plus 3 gives 7 means is equal to 7. So इसी तरह है पार्ट D, and number t divided by 3. And number t कोई नंबर है, divided by 3, उसको डिवाइड करते हैं 3 से, and number t divided by 3 gives 5 means is equal to 5. Gives 5 means is equal to, number t is divided by 3 gives 5, that means is equal to 5. Now part E, 2y is the sum of x and y. 2y is the sum of x and y. Sum of x and y, x plus y, this is sum of x and y. इसका 2y यानी 2 से इस सम को मल्टीप्लाई करो, 2 into x plus y. लेकिन ये ब्रैकेट में रखना है x plus y, क्योंकि हमें सम को मल्टीप्लाई करना है, जो इनको ऐड करके निकलेगा उसी को मल्टीप्लाई करना है. आप अगर इस तरह लिखोगे सम ऑफ x plus y, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 खाली x को मल्टीप्लाई हो गया, ये सम को नहीं हो गया. लिहाजा सम को लिखना है ब्रैकेट में, यानी x और y अगर इनके वैल्यूज हमें पता होंगे, अगर इनके वैल्यूज हमें पता होंगे, मान लो अगर x है 2 के बराबर, 2 इंटू x का वैल्यू अगर 2 है, समझाने के लिए y इज इक्वल टू 3, तो x के बदले 2 प्लस y का वैल्यू अगर 3 है, तो अगर आप इस तरह लिखोगे 2 इंटू 2 प्लस 3, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, ये तो बारमास बन गया. पहले आपको मल्टीप्लिकेशन हल करना है, 2 2s are 4 प्लस 3, तो आंसर निकलता है 7. लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, 2 इंटू, पहले आपको सम निकालना है, 3 प्लस 2 इज 5, तो 2 इंटू 5 इज 10. देखो कितना फर्क पड़ गया, यहाँ तो 10 आंसर निकलता है, यहाँ खाली 7 निकला. अगर हमने ये गलती की कि ब्रैकेट नहीं डाला और सीधा लिखा सम ऑफ x प्लस वाई इंटू 2, सीधे वो 2 से ऐसे मल्टीप्लाई किया, वो तो खाली x को होगा मल्टीप्लाई, पूरे सम को नहीं होगा. लिहाजा सम को लिखना है ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखना है, वही हो गया 2 इज द सम. 2 is the sum of x plus y is 9. Is 9 means is equal to 9. Now move to the question number 3. Write the statement for the following equations. अब यहाँ तो
स्टेटमेंट्स दी हुई थी, इक्वेशंस बनानी थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें इक्वेशंस दी हुई है, हमें स्टेटमेंट्स बनानी है। यानी अब इक्वेशन दी हुई है, इसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे इसकी इनकी स्टेटमेंट्स थी, फिर हमने इक्वेशंस बनाई। अब इक्वेशंस दी हुई है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 7 = 5, 3x + 7 = 5। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? 7 एडेड, 7 किसको ऐड किया गया है? 3 टाइम्स x, 7 एडेड टू 3 टाइम्स x गिव्स 5। ऐसे बनेगी स्टेटमेंट। 7 एडेड टू, 7 किसको ऐड करके हैं? 7 एडेड टू 3 टाइम्स x, 7 एडेड टू 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x मीन्स x को 3 से मल्टीप्लाई, 7 एडेड टू 3 टाइम्स x गिव्स 5, 7 एडेड टू 3 टाइम्स x गिव्स 5। ये बन गई इसकी स्टेटमेंट। इसी तरह है दूसरी इक्वेशन, दूसरा पार्ट इसका 6m = 8, 6m = 18। तो क्या बनेगी इसकी स्टेटमेंट? 6 टाइम्स m is 18 और gives 18, 6 टाइम्स m, 6 टाइम्स m gives 18 या is 18, gives 18 लिखो या is 18 लिखो, 6 टाइम्स m is 18। इसी तरह पार्ट सी है 4t = 0, दैट मीन्स 4 टाइम्स t is 0 और 4 टाइम्स t gives 0। पार्ट डी है x/4 - 10 = 1, x/4 - 1 = x/4 - 10 = 1। तो क्या है? 10 subtracted from 1/4 of x, x/4 means 1/4 of x, 10 subtracted from 1/4 of x gives 1, 10 subtracted from 1/4 of x, 10 subtracted from 1/4 of x gives 1, 10 subtracted from 1/4 of x gives 1, 10 subtracted from 1/4 of x gives 1। तो इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, कितने क्वेश्चंस हैं इसके? टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाऊंगा मैं। Question number 4, 3x + 1 = 10, part A, 3x + 1 = 10। इसको सॉल्व करना है 3x + 1 = 10, लेकिन किस मेथड से? बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। रिकॉल दैट ट्रायल एंड एरर मेथड जो मैंने आपको बताया था। हमें बताना है x का कौन सा वैल्यू होगा जिससे ये LHS इक्वेशन का RHS के बराबर बनेगा। इक्वेशन का LHS किस तरीके से RHS के बराबर बनेगा? तो उसमें याद करो, मैंने बताया था आपको हम डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करने हैं x के। आप पहले LHS लोगे, क्योंकि RHS तो हमें पता है 10 के बराबर है। तो LHS हमें देखना है। LHS क्या है यहाँ? 3x + 1। अब x को मुख्तलिफ वैल्यू ट्राई करने हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे। लेट x = 1। अगर x का वैल्यू 1 देंगे, देयरफॉर LHS किसके बराबर निकलेगा? 3 इंटू एक्स के बदले लिखेंगे 1 अब, क्योंकि x को हमने y वैल्यू 1 वैल्यू दे दिया। 3 इंटू 1 + 1, 3 1s are 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो LHS 4 के बराबर निकलता है। तो इसका मतलब है LHS RHS के बराबर नहीं निकलता है। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस वैल्यू से अगर हम x को 1 वैल्यू देते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है इक्वेशन को, यानी LHS और RHS इक्वल नहीं निकलते। अब x के बदले, क्योंकि LHS अब निकला कम, x को जब हमने वैल्यू 1 दे दिया तो ये 4 निकला, ये RHS से कम निकला। तो इसका मतलब है x का वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए। अब हम 2 ट्राई कर लेंगे। लेट x = 2, देयरफॉर LHS क्या बनेगा? अगर x का वैल्यू आप 2 लेंगे तो ये बनेगा 3 इंटू 2,
अब x का वैल्यू 2 जब देंगे तो बनेगा 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 2 जार 6 प्लस 1 इज 7, तब भी ये 10 के बराबर नहीं है। दिस देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ भी LHS और RHS बराबर नहीं निकला, यहाँ भी यह RHS से कम ही निकला वैल्यू। इसका मतलब है x का वैल्यू 2 से बड़ा है। लेट x इज इक्वल टू 3, अगर आप x को वैल्यू दे देंगे 3, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, फिर ये क्या बनेगा, x का वैल्यू आप 3 दे दो, ये बन गया 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 9 प्लस 1 इज 10। अब ये निकला RHS के बराबर, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस तो x का फाइनल वैल्यू क्या है, एक्यूरेट वैल्यू क्या है, हैंस x इज इक्वल टू x का वैल्यू फिर 3 है। तो निकला हमें ट्रायल मेथड के जरिए x का वैल्यू। इस तरह ये बाकी पार्ट्स आप करोगे, मुख्तलिफ वैल्यूज 1 से स्टार्ट करके आप वेरिएबल को पहले 1 वैल्यू दे दोगे, फिर 2 वैल्यू दे दोगे, और किस वैल्यू से ये LHS और RHS बराबर निकलेगा वही फाइनल वैल्यू होगा, वही एक्यूरेट वैल्यू होगा उस इक्वेशन का, और वही उसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, इसमें भी वेरिएबल का हमें वैल्यू निकालना है, लेकिन नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड बट बाय सिस्टमैटिक मेथड, जो मैंने दिखाया था आपको एग्जांपल में टॉपिक शुरू करते वक्त कि ट्रायल मेथड क्या होता है और सिस्टमैटिक मेथड कैसे हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए। जैसे पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ भी हमें सिस्टमैटिक मेथड के जरिए वैल्यू निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। क्या है पहली इक्वेशन, 3z प्लस 12 इज इक्वल टू 15, 3z प्लस 12 इज इक्वल टू 15। तो सिस्टमैटिक मेथड में हम क्या करते हैं, हमें z का वैल्यू निकालना है। तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है, यानी कॉमन बैलेंस के दो पलड़े, जिस तरह से हम घर में तराजू इस्तेमाल करते हैं, ये तराजू के दो पलड़े हो गए, तो जब इसमें हम पैमाना डालते हैं, मान लो 5 kg पैमाना हमने इसमें डाल दिया, तो इसमें दूसरी साइड में हमने वीट डाला या राइस, जो भी चीज तोलनी है, तो इसमें पैमाना डाला 5 kg का, तो दूसरे पलड़े में हम वीट डालते जाते हैं जब तक ये डंडी ऐसे बैलेंस हो जाएगी। तो जब ये बैलेंस हो जाएगी तो इसका मतलब है इसमें जो हमने वेट डाला, ये वीट डाला, वो अब 5 kg के बराबर हो गया जब ये डंडी हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगी ऐसे। अगर ये एक तरफ को झुकेगी ऐसे, अगर ये एक साइड में ऐसे झुकी हुई रहेगी, एक ही तरफ झुकी हुई रहेगी ये ऐसे, तो उसका मतलब है ये पलड़ा नीचे है, वो पलड़ा ऊपर है, तो इसका मतलब है इस पलड़े में वेट ज्यादा है, इसमें कम है। तो फिर ये कैसे बैलेंस करना है, इसमें और डालना है ताकि ये नीचे की तरफ झुके और ये बैलेंस हो जाए। तो तब तक डालते रहना है जब तक ये वेट बराबर होता है, ये कॉमन बैलेंस है। तो ये जो इक्वेशन जो है ये इज इक्वल टू जो है, इसका मतलब है ये तराजू के दो पलड़े हैं। साइन ऑफ इक्वलिटी के ये लेफ्ट हैंड साइड में ये एक पलड़ा हो गया 3z प्लस 12, और दूसरे पलड़े में है 15। इज इक्वल टू का मतलब है ये बैलेंस है, ये एक साथ बराबर है, जितना वेट इसमें है LHS में उतना RHS में भी है। इस पलड़े और इस पलड़े दोनों पलड़ों का वेट जो है इट इज इक्वल, द वेट इन बोथ द पैनल्स ऑफ द कॉमन बैलेंस इज सेम, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन ऑफ इक्वालिटी। अब हमें z का वैल्यू निकालना है, तो z का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम साइन ऑफ इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में सिर्फ z को रखते हैं, बाकी सबको कैंसिल करना है। पहले इस 12 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 खत्म करो, एलिमिनेट करना है इसको LHS से। तो ये 12 कैसे एलिमिनेट होगा, अगर इसको साथ में ये प्लस 12 है, अगर साथ में माइनस 12 होता तो प्लस 12 और माइनस 12 कैंसिल हो जाता है। तो हमें LHS में से सब्ट्रैक्ट करना है 12, इसको माइनस करना है 12 माइनस 12 तो हो गया 12 कैंसिल। लेकिन जब हमने एक पलड़े में 12 कैंसिल किया तो ये बैलेंस नहीं रहेगा, ये एक पलड़े से अगर हमने कुछ वेट उठाया वो तो बैलेंस में थे, दोनों पलड़े तराजू के, ये अभी बैलेंस में थे ऐसे। ये अगर ये 5 kg थे, इसमें भी 5 kg है, तो अगर हमें इसमें से 2 kg माइनस करते हैं, ये 3 kg रह गए, तो ये तो ऊपर हो जाएगा पलड़ा, ये वाला नीचे झुकेगा क्योंकि अब वेट तो इसमें ज्यादा रह गया।
लेकिन हमें ये 12 भी कैंसिल करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ये भी बैलेंस रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, जितना हमने इसमें से माइनस किया उतना इसमें से भी उठाना है। इसमें से हमने 2 kg अगर वापस उठाए तो इसमें से भी 2 kg वापस उठाने, तब ये बैलेंस रहेगी। तो यह 12 कैंसिल करने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया 12, तो इस साइड में भी फिर 12 सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि ये दोनों पार्टों में हम दो सेम ये माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम क्वांटिटी, सो दैट द टू पैनल्स रिमेन इन बैलेंस। तो उस तरह से ये +12 और -12 कैंसिल होता है, तो ये बनता है 3z इज इक्वल टू 12, 15 - 12 दैट इज इक्वल टू 3। आमतौर पर ये इसी तरह ये एक नंबर को हम इक्वेशन में सॉल्व इसी तरह हम करते हैं, लेकिन अब हम शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये +12 इसको ट्रांसफर कर लो दूसरी साइड में, ये -12 बनेगा। लेकिन दरअसल क्या होता है, हम ये सब्ट्रैक्ट यहाँ भी -12 करते हैं, यहाँ भी, तो एक साइड में ये 12 कैंसिल हो जाता है, तो दूसरी साइड में ये -12 बन जाता है। तो इसीलिए याद रखने के लिए शॉर्टकट में हमने आपको ये समझाने के लिए, याद रखने के लिए आपको बताया है कि इस 12 को जब ये कैंसिल करते हैं यहाँ से, तो दूसरी साइड में इधर अगर ये प्लस है उधर माइनस बनेगा, अगर यहाँ माइनस होता तो दूसरी साइड में प्लस बनेगा। दरअसल अगर यहाँ पर ये माइनस होता तो इसको हमें ऐड करना था प्लस, तो इधर भी करना था ऐड प्लस, तो इधर ये माइनस और 12 कैंसिल हो जाता, तो इधर हम फिर कहते हैं कि ये इधर माइनस था उधर बन गया प्लस। लेकिन दरअसल हमने ट्रांसफर नहीं करते हैं, हम एक साइड से कैंसिल करते हैं, दूसरी साइड में वो मौजूद रहता है। तो आप अब ये याद रखो, आप ये 12 को ट्रांसफर उधर करना है, ट्रांसफर हम नहीं करते हैं, हम ये कैंसिल करते हैं, यहाँ भी -12 करते हैं, यहाँ भी, यहाँ +12 और -12 कैंसिल हो जाता है, खाली 3z रह जाता है इधर, तो दूसरी साइड में -12 रह जाता है। यहाँ भी हमने -12 किया, यहाँ भी, यहाँ +12 और -12 कैंसिल हो गया, दूसरी साइड में ये -12 रह गया। तो अब याद रखने के लिए आप ये भी आप याद रख सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए दिखाया। तो ये +12 इसको खत्म करने के लिए दूसरी साइड में -12 बनता है। तो अब ये 3z क्या निकला, 15 - 12 इज 3, तो z का वैल्यू निकालना है। अब 3 को भी कैंसिल करना है, खाली z रखना है, तो ये 3 कैसे कैंसिल होगा, इसको डिवाइड करना है 3 से, 3z को जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 कैंसिल होगा। लेकिन जब इधर करेंगे डिवाइड तो इधर भी डिवाइड करना है 3 से। लेफ्ट साइड में अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं LHS को, तो RHS को भी 3 से ही डिवाइड करना है। यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो गया, रह गया z, तो यहाँ बन गया ये 3/3। अब याद रखने के लिए अगर एक साइड में 3 × z, 3z मीनस 3 × z, एक साइड में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो दूसरी साइड में अगर उनको ट्रांसफर 3 को दूसरी साइड में करते हैं, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड डिवीजन बनता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दे आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। अगर इक्वेशन के एक साइड में मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी साइड में वो डिवीजन बनता है, अगर एक साइड में डिवीजन है, दूसरी साइड में मल्टीप्लिकेशन बनता है। इसी तरह प्लस एंड माइनस दे आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, उनको एडिटिव इनवर्सेस कहते हैं। एक तरफ अगर प्लस है दूसरी साइड में माइनस बनता है, एक साइड में माइनस दूसरी साइड में प्लस। तो ये 3 जब इधर ट्रांसफर होगा, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन है, इधर डिवाइड बन गया, 3 1s are 3, therefore z is equal to 1. This is the systematic method of solving the equation. Rest of the parts of this question number 5 you will do yourselves. Hope you have understood today's lecture. We will meet tomorrow inshallah. Till then, Khuda Hafiz.